तुम्हें क्या लगता है, लोग बिल्कुल पागल हो रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं कि बस कोई आए और हमें ईशावास्य उपनिषद पढ़ा दे? तुम्हें लग रहा है ऐसा है? उन्हें पढ़वाना पड़ता है, उन तक पहुंचना पड़ता है, एक तरह से जबरदस्ती करनी पड़ती है, तब लोग पढ़ते हैं। और अगर तुम्हारे पास वो संसाधन न हो उन तक पहुंचने के, बार बार उनकी स्क्रीन पर दस्तक देने के, तो कोई पढ़ेगा नहीं। ये बहुत खेद की बात है कि हम ऐसे समय में, ऐसे समाज में जी रहे हैं कि सच को बहुत बहुत सारे प्रचार की जरूरत पड़ती है। आप संस्था को जो भी धन देते हैं वो सच के प्रचार में ही खर्च होता है। हमारी किताबें, हमारा वीडियोस, इनका प्रचार हो सके और ये लोगों तक पहुंच सके, और बहुत कम पड़ता है। और ये खर्चा हमें उस दिन तक करना पड़ेगा जिस दिन तक आप में सच्चाई के लिए एक प्यार नहीं पैदा हो जाता। प्रणाम आचार्य जी। जी। मैं डॉक्टर हूँ, गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। प्रोफेशनली तो मैं ठीक हूँ। मॉम डैड ने काफी सपोर्ट किया एंड प्रोफेशनली आज मैं ठीक हूँ, बट पर्सनली तो बहुत बैंड बज चुकी है। आई वॉज मैरिड 3 years बैक एंड नो आई एम डिवोर्स। मैरिज करते टाइम प्रकृति के खेल से या whatever the reasons were there, we got married. And later my husband told like I am not the kind of a person like which he used to fantasize in mean physical look wise. He used to tell like I like your nature but I am not liking your looks. So then I felt like offended and rejection, all those things. I tried being with him even though on the level of love and I wanted to help him. I told him no girl will satisfy your fantasy. I tried, but later I questioned myself for what reason I am staying. Then I split all the reasons. Then I found nothing. It was not helping either him nor me. So I separated. I fought with mom, dad, everybody, and I separated. My parents are unhappy with that. The what he used to always tell me is like he used to tell me like I will marry other girl also, and we I'll keep both of you as Sri Krishna used to love so many people. Why can't I love so at least two girls? Like he always used to tell like this. I didn't had any answer how to make him understand like the level of conscious what Sri Krishna had. He doesn't have, but he didn't understood it. But still I tried so many times. Tried to make him understand, but it could not help. So I finally separated. But now even though me being very well in professionally, but my parents are not at all happy. I have made a strong decision like if I have to be with somebody like it should be with the higher conscious person only, or else I'll be alone. But somewhere their daughter will feel bad inside by looking at her parents' sad faces and all. I have sacrificed my motherhood only for this liberation sake. I have not had one child also. I have told until I get the me being a gynecologist, when I deliver so many people, inside I used to feel bad. But after listening you, I felt so powerful and so happy about myself that I didn't take that decision of giving birth in that unstable time. And my one more question is like my patients are like all like female patients, like in pregnancy and all. We have to tell them like have egg and milk. I don't know how exactly to tell them like egg and milk is also a bad thing. I am not understanding how to explain that. Please help me. मुझे तो दोनों ही सवालों में कहीं कोई मजबूरी दिखाई नहीं दे रही है। हाउ टू टेल देम टू नॉट टू हैव एग एंड मीट? Yeah, egg and milk, one question. And second thing was one more question was how to explain my ex-husband that like he always used to tell like I can have so many people in my life, like uh, a good looking girl also, and to you also. I could not explain him. It is not like that, like just hooking up with somebody just like that. I could not understand him like आप डाइवोर्स yeah ले I'm चुकी हैं ना? yeah I took divorce, but that
that question still haunt me. अब काहे That को what would have been the- काहे को उसको जाके समझाना है? No, that उसको- question still haunt me. What was the perfect answer at that time? डाइवोर्स इज द परफेक्ट आंसर। दे तो दिया, Yeah, because I felt like that was the right thing. Because I तो आंसर could क्या not- देना है इसमें? no. आंसर इज Like- कालिया नाग। He always questions like कालिया Shri नाग, Krishna. सुनिए तो सही अब आप। Yes, yes. कालिया नाग लेकर के आइए, छोड़ दीजिए उसके ऊपर, बोलिए कृष्ण तो नाचे थे उसके ऊपर बैठ के, अब तुम भी नाच के दिखाओ। Yes. द आंसर इज गोवर्धन पर्वत। Yes, sir. वो ना मिल रहा हो तो जिम से बस 60-70 किलो के वजन कहिए उठा, इस उंगली पे, इस उंगली पे उठा। Yes, sir. And how to be more strong by seeing my sad faces of parents, I'm not understanding that. Like little bit I want to be more strong still. उनको क्या बोलना है कि एग एंड मीट नहीं लो, उसको ऐसे बोला जाता है, उसका तरीका बताता हूँ। एग और मीट ज़रूरी नहीं है, ऐसे बोलिए। Yes. समस्या क्या है? My own parents, sir, my own parents, when they see me divorced and like, not having a family, they Pushpa feel sad by looking at me. My own parents. वन कैन फील सैड अबाउट एनीथिंग। सैडनेस का जो रीज़न होता है वो अपने भीतर का ज्ञान होता है, आप थोड़ी उनकी सैडनेस का रीज़न है। आप शादी कर लीजिए, उन्हें कोई और सैडनेस आ जाएगी। उन्हें तो सैड रहना है, क्योंकि अज्ञान का ही परिणाम दुख है। आप थोड़ी जिम्मेदार हैं उनके दुख की। जिनको ये समझ में नहीं आ रहा कि एक विवाह का क्या अंजाम हुआ, उसके बाद वो कह रहे हैं दोबारा घुसो, तो ऐसों को कौन बचा सकता है? और आप कह रही हैं कि अब अगर कोई मिल गया ऊंची बुद्धि का पुरुष तो कर लेंगे विवाह, तो ठीक तो कह रही हैं, मिल जाएगा तो कर लीजिएगा, नहीं मिला तो मत करिए। समस्या कहाँ है? I feel like as if I have done any crime towards them. Like, I was not a good daughter, I feel sometimes. ये कौन से शास्त्र में लिखा है कि अ गुड डॉटर? Because always they make me feel like that, even though कोई कुछ भी कर सकता है, आपके ऊपर क्या मजबूरी है कि आप फील कर रही हैं? दे मेक मी फील लाइक दैट। फिर वही मजबूरी, दे डिड दैट, दे मेड मी फील बैड। आप कठपुतली हैं, कोई आके आपको बटन घुमा देता है, आप बैड फील करने लग जाती हैं। कोई आके आपको बैड फील करा देता है, कोई दूसरा आके गुड फील करा देता है, कोई हाई लो कुछ भी कुछ फील कराता रहता है, आप फील करती रहेंगी। तो फिर आपको समस्या क्या है? आपको क्या मजबूरी है? like only that attachment of the parents, that's all, sir. Like, I don't care about all that society and all. I can तो आप जानती हैं कि वो अटैचमेंट है, तो जानती हैं कि अटैचमेंट है, तो क्यों फंसी हुई है? क्यों फंसी हुई है? मैं बताता हूँ क्या बात है। हमें हमारे आंसू नहीं पता ना झूठे हैं, इसीलिए हमें ये भी नहीं पता कि हमारे आसपास वालों के आंसू झूठे हैं। हमें ये नहीं पता ना हमारी भावनाएं कितनी झूठी हैं, इसीलिए हमें ये नहीं पता कि हमारे माँ बाप की भावनाएं कितनी झूठी हैं। हम अपनी भावनाओं के चलाए चलते रहते हैं तो हमें लगता है भावना बड़ी ऊंची बात होती है। फिर भावनाएं हम दूसरों में देखते हैं तो हमें लगता है वहाँ भी कुछ बहुत महत्वपूर्ण हो रहा है। आपने जिस दिन अपनी भावना को महत्व देना बंद कर दिया, आप जान जाएंगी दूसरों की भावना भी किसी लायक नहीं है, पर आपकी अपनी भावना बिल्कुल सर पे चढ़कर बोलती है। आपका अपना आंसू टपक जाता है तो आपको लगता है कितनी बड़ी बात हो, कितनी बड़ी बात हो गई, ओ माय गॉड ही मेड मी क्राई। आंसू का क्या है? टपक गया, शरीर है, शरीर से पानी की एक बूंद टपक गई, शरीर का काम है टपकाना, टपकाता रहता है, उसमें आप क्यों परेशान हो रही हैं? क्या समस्या है? समस्या बस इतनी सी है कि आपकी बेटी होगी तो जैसे आप अपने माँ बाप की भावनाओं का सामना नहीं कर पा रही हैं, आप भी चाहेंगी कि आपकी बेटी आपकी भावनाओं की भी कदर करे, क्योंकि लेके देकर यहाँ बात भावना की है। अगर भावना इतनी सम्माननीय चीज़ है
तो फिर आप ये भी चाहेंगे ना कि आपकी बेटी भी आपकी भावनाओं को माने। खेल सारा उस अज्ञान का है जो जानता ही नहीं कि ये भावना वास्तव में चीज क्या है, हमें पता ही नहीं है। और जिस चीज को आप नहीं समझेंगे, नियम जान लीजिए, आप उसके गुलाम बन जाएंगे। ऋषि पागल नहीं थे जो कह रहे थे कि बोध ही मुक्ति देता है, माने जहां अज्ञान है वहां बंधन है, और कोई बंधन नहीं होता, अज्ञान बंधन है। आप बात को समझते नहीं है, इसीलिए उसके शिकार हो जाते हैं। किसी ने आंसू टपका दिया, आप शिकार हो गए। किसी ने आंख मार दी, आप उसके भी शिकार हो गए। आपको पता भी है आंख मारने की पूरी प्रक्रिया क्या है। आप जैसे ही समझ जाएंगे, आप पे असर होना ही बंद हो जाएगा। किसी का चेहरा आपको आकर्षक लग गया, आप शिकार हो गए। आप जानते भी हैं पूरी प्रक्रिया क्या है, कैसे मन को कोई चीज़ आकर्षक लगती है। थोड़ा उस प्रक्रिया को समझने की कोशिश करिए, आकर्षण आप पर काम करना बंद कर देगा। नहीं करेगा काम। देखिए, मैं कोई ऐसा उत्तर नहीं दे सकता जो आपकी ज़िंदगी बढ़िया कर देगा। मेरे उत्तर से आपकी ज़िंदगी ठीक नहीं होने वाली। समझ में आ रही है बात? आपकी ज़िंदगी आपके हाथ में है, आपको ही ठीक करनी है। मेरा काम है आपसे बस इतना ही बोलना कि आपकी ज़िंदगी आपके हाथ में है। वो भी मैं आपको पढ़ा नहीं रहा, आपको बस याद दिला रहा हूँ, क्योंकि आप बनते हैं मजबूरी के मारे। हम क्या करें? वही देवदास, मैं मजबूर थी। तो उसके लिए हमारा जवाब क्या था? पारो, तुम झूठ बोल रही हो, कोई मजबूर नहीं होता। मेरा काम बस आपको यह बताना है कि आप मजबूर नहीं हैं। उसके बाद आप जानिए, आपका फैसला, आपकी जिंदगी।